I think I have gone live on this platform. So, my name is Jagriti Avasthi, and I secured All India Rank 2 in UPSC Civil Service Examination 2020. Um, I'm here to share my strategy with all of you in short as to what I did and that benefited me in this examination and what can I share with you. So, here are my 2 cents on preparation for this examination. First thing first is that you have to be very, very thorough with the syllabus. So, whenever you start the preparation, please pick up a copy of the syllabus, go through it. I know you won't be able to make much of what it means and what these different topics entail. Just go through them, repeatedly read it. What this process would do is that this would make sure that on entire टॉपिक्स दैट यूपीएससी आस्क्स इट स्ट्रेट गोज इनटू योर हेड सो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कि यूपीएससी में एटलीस्ट टॉपिक्स कौन से पूछे जाते हैं द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट यू मस्ट डू एंड दिस एक्सरसाइज इज नॉट जस्ट फॉर दोज हु आर स्टार्टिंग विद देयर प्रिपरेशन बट ऑल ऑफ देम even if you are in the preparation and you haven't done this exercise, please do it. It is a really beneficial exercise. Next thing that you should do is to pick up the copy of previous year questions. अगर मैं आपको बोलूँ कि पूरी यूपीएससी प्रिपरेशन में कोई गोल्डन रूल है या कोई गोल्डन ऐसी चीज है जिसको मैंने फॉलो किया हो एंड आई हैव बीन बेनिफिटेड देन इट इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सॉल्व कॉपी प्रीलिम्स की भी मेंस की सॉल्व कॉपी मत भी लीजिए टॉपिक वाइज ईयर वाइज सेग्रीगेशन एंड टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन होना चाहिए कि भाई अगर सपोज 1857 का रिवॉल्यूशन है तो उसमें प्रीलिम्स में पहले कौन से क्वेश्चंस आए थे मेंस में कौन से क्वेश्चंस आए थे जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस एज वेल इफ अगर आप हिस्ट्री उठा रहे हैं इफ यू आर गोइंग टू कवर हिस्ट्री देन जस्ट हिस्ट्री का सिलेबस पढ़ लीजिए उसके आए हुए प्रीलिम्स के और मेंस के क्वेश्चन पढ़ लीजिए यदि आपको इंग्लिश को समझने में दिक्कत होती है तो उसका आप हिंदी ट्रांसलेशन क्योंकि यूपीएससी के जो पेपर्स हैं वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही हिंदी में भी अवेलेबल होते हैं जस्ट गो थ्रू इट अंडरस्टैंड व्हाट यूपीएससी इज आस्किंग इस प्रोसेस से यू विल गेट एन एंटायर ओवरव्यू ऑफ व्हाट UPSC exam is about, the topics, the standard of the questions. So this is one thing. Second thing should be finalizing your book list. So I'll just reiterate my book list that I use for this entire examination. Let's go topic wise. So for polity, Lakshmikant and class 11th NCRT Indian Constitution at Work. These two books will be really, really useful to you. So just go through them, previous year questions, and this would do. I mean, more or less, this is what. And also, I took coaching. So for mains, only for mains, I took help of the notes that they provided there, and those notes I've uploaded on my Telegram channel as well. So you can have a look there. उनको क्योंकि वो थोड़ा सा vocabulary develop करने में help हो जाती है. This was for polity. Let's come to history. Ancient history के लिए I had my own notes. All right, I had my own notes. उसमें मैं सिर्फ ऐड ऑन करती थी फ्रॉम तमिलनाडु की जो किताब है इवन दोज नोट्स आई स्कैन एंड पुट ऑन माय टेलीग्राम चैनल सो मेक श्योर कि आप बुक्स जरूर पढ़ें यू कैन गो फॉर तमिलनाडु बोर्ड बुक और यू कैन गो फॉर आर एस शर्मा ऑल्सो आर एस शर्मा इज अ बिट हेवी I think Tamil Nadu board is a much lighter version of the same. Whenever you are reading ancient history, go through art and culture parallelly. Suppose आप अगर इन इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का अपना आर्ट एंड आर्किटेक्चर होता था सो प्लीज लिंक देम फॉर आर्ट एंड कल्चर रीड फ्रॉम फाइन आर्ट्स एनसीईआरटी and additionally you can supplement what I did additionally was Nitin Singhania sir's handwritten notes not the book I read the handwritten books that are available in the market so you can buy it from a photocopy center and just go if you have read Indus Valley Civilization from the book you can just go and read from the notes and combine them into one तो आपको एक जगह सारी चीजें रखनी है आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा उसमें आप ऐड कर लीजिए फाइन आर्ट्स के एनसीईआरटी से उसमें आप ऐड कर लीजिए अपने नितिन सिंघानिया सर के नोट से पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पढ़िए उनके सॉल्यूशंस को पढ़िए उन टॉपिक्स को थोड़ा और गहनता से पढ़िए जैसे अगर आप देखेंगे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म पे क्वेश्चंस काफी डिटेल में आ जाते हैं सो टू मेक श्योर कि उनको आप छोड़ ना दें तो उसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए एक बार अलग से पढ़ लीजिए जो टॉपिक पूछे जाते हैं उनको गूगल करके पढ़ लीजिए इस तरह से यू आर वेरी स्मार्ट इन कनेक्टिंग कलेक्टिंग एंटायर you know the
volume, the content of each and every topic. This was for ancient history. Medieval के लिए तो I just read Tamil Nadu board की class 11th की book है, हाँ, पीछे साइड में दिया हुआ है, because उस पे cost benefit ratio उतना नहीं है. For world history, I did Tamil Nadu board, and all these Tamil Nadu board are the old edition books. So for that, I did class 12th part 2. In its part 2, they have mentioned this world history brief में, क्योंकि उसका रीजन ये है कि अगर आप बहुत एफर्ट डालेंगे तो उतना आपका आउटपुट नहीं मिलेगा. द क्वेश्चन इफ इट इज सिंपल तो वो सबके लिए सिंपल होगा. इफ इट्स डिफिकल्ट इट्स गोना बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, सो यू वोंट बी एबल टू डू इट ईदर वे. सो डोंट स्पेंड टू मच टाइम. इन माय आई वाज लकी कि एक भी क्वेश्चन नहीं आया था वर्ल्ड हिस्ट्री से. कमिंग टू ज्योग्राफी, सो ज्योग्राफी के लिए आप 4 एनसीईआरटीज 11th और 12th की थरली पढ़ लीजिए. यूट्यूब पर जो मृणाल सर का चैनल है उस पर राजतनिल सोलंकी मैडम ने पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है वीडियोस की, उनको देख लीजिए. उनको सिर्फ समझ लीजिए देख करके, और जो भी वो प्लेसेस बोलेंगी आपको लगेगा कि दीज प्लेसेस आर नेवर हर्ड ऑफ, लाइक शील से कटंगा प्लेटो और सम रिवर्स दैट यू हैव नॉट हर्ड ऑफ. नोट कर लीजिए एंड जस्ट मैप देम. उनको अपने एटलस पे जाके आप जरूर देखिए कि आफ्टर ऑल ये जगह हैं तो हैं कहाँ. दिस विल हेल्प यू गेन अ गुड आइडिया ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड ऑन दैट. मैपिंग अपनी खुद करिए. ऑलमोस्ट आप सारी जितनी भी जगहें इंपॉर्टेंट हैं, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी जगहें पढ़ने के लिए मिलेंगी, उनको मैप पर बना लीजिए. आई वंस अगेन आई रीट्रेट कि मेरी ये पूरी बुक लिस्ट जो मैं आपको बता रही हूँ, जितने भी नोट्स बता रही हूँ, मैपिंग बोल रही हूँ, ये मैंने अपने सारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए हैं. इट इज जागृति_AIR2. अगर आपका मन करे आप जाके वहां पे एक बार देख भी सकते हो, सो यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि मैं मैप कैसे बनाती थी स्टेट वाइज. जैसे सपोज इंडिया का मैप लिया, एक पर्टिकुलर स्टेट को जूम करके उसका प्रिंट आउट ले लिया, फिर उस स्टेट में जो भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं या जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, जो इंपॉर्टेंट जगह हैं, उनको उसमें मार्क कर लेती थी. तो दैट बिकम्स ईजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड एंड रिवाइज लेटर. सो दैट कैन बी वन. ज्योग्राफी के लिए इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू हैव अ वेरी वेरी थरो कमांड ऑन मैप्स. यू हैव टू हैव अ थरो कमांड ऑन द 4 एनसीईआरटीज. आप सोलंकी मैडम की अगर वीडियोस देख लेंगे तो यू विल हैव अ फेयर आइडिया. कंसेप्ट डेवलप करने में आपको हेल्प हो जाएगी. दिस इज वन थिंग फॉर ज्योग्राफी. ज्योग्राफी के बाद में लेट अस कम टू एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट के लिए आप क्लास 11th एनसीईआरटी की पार्ट 2 का लास्ट चैप्टर जो है एनवायरमेंट केमिस्ट्री वो, और बायोलॉजी का जो क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी में एक पूरी यूनिट है 4 चैप्टर्स की, बाय द नेम ऑफ इकोलॉजी. वो पूरी यूनिट है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए. शंकर आईएएस की बुक पढ़ लीजिए. देखिए वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं है एनवायरनमेंट में, इट्स अ वेरी डायनामिक टॉपिक. और वैशाली आनंद मैडम का एक टेलीग्राम चैनल चलता है जिसमें वो बहुत सारे आर्टिकल शेयर करती हैं. एमसीक्यूज मत करिएगा उनके चैनल से, वो बहुत डिटेल लगते थे, मैं भी नहीं करती थी. बट अगर उन्होंने कोई रिपोर्ट शेयर की हुई है, कोई आर्टिकल शेयर किया हुआ है, तो उसको प्लीज देख लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा. वो अच्छे आर्टिकल्स होते हैं, आपको मेंस में काम आएंगे. या आप चाहे तो ये एक्सरसाइज आप सिर्फ मेंस के लिए करिए एनवायरनमेंट में. जो मैम का मैंने चैनल बताया है कि आप उसमें से आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, उनमें से कुछ रिपोर्ट्स वगैरह शेयर करती हैं, रिपोर्ट्स की समरी शेयर करती हैं, वो आप कर सकते हैं. दैट यू कैन डू. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए तो आप कोई भी है ना करंट अफेयर्स की या कोई भी किसी भी जो आपको इंस्टीट्यूट अच्छा लगता हो उसकी ऑनलाइन मैनुअल ले लो, उसको पढ़ लो. जिस टॉपिक में दिक्कत हो उस टॉपिक को गूगल करके आप समझ लो. कोई वन स्टॉप सोल्यूशन एज सच नहीं है. चाहे तो फोटोकॉपी सेंटर से राहुल शंकर सर के नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स अगर मिल जाए तो वो खरीद लीजिएगा, उसको पढ़ डालिएगा. दैट विल हेल्प यू. बाकी तो करंट अफेयर्स से ऑलमोस्ट हो जाता है. देन व्हाट एल्स इज रिमेनिंग. इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स के लिए आपको एक तो 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. दैट विल गिव यू good fodder for mains and also for essay. Apart from that, you can read any base material. See, it can be Shriram IAS का notes, Vision IAS का notes, और मृणाल सर का जो अकेडमी पे कोर्स चलता है उसके हैंडआउट्स. एंड ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल. ऑलराइट. सो वॉट एवर यू फील लाइक, इसमें से जो भी आपको ठीक लगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए या जो भी है. सो उनमें से एक कोई बेस मटेरियल बना करके आप पढ़ लीजिए. इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक. सो मेजर यही सब्जेक्ट्स हैं. इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए व्हाट आई डिड वाज कि भाई आप मेंस 365 ले लो. विजन आईएएस की आती है मेंस 365, जहां भी मिले वहां से आप ले लीजिए. ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ. उसको प्रिंट करिए, एक साइड ब्लैंक और एक साइड प्रिंटेड. उसको पढ़िए. सपोज आप इंडिया नेपाल पढ़ रहे हैं, उसको समझ लीजिए, पढ़ लीजिए.
उसके बाद आप गूगल करिएगा सिविल्स डेली फॉरेन पॉलिसी या सिविल्स डेली इंटरनेशनल रिलेशंस, तो एक पेज ओपन होगा जिसमें बहुत सारे ना कंट्रीज ऐसे मेंशन होंगे, इंडिया नेपाल, इंडिया चाइना, इंडिया बांग्लादेश। उस पे आप क्लिक करोगे तो क्रोनोलॉजिकली जो एडिटोरियल्स आए हैं, जो आर्टिकल्स आए हैं न्यूज़पेपर्स में, वो आपको मिल जाएंगे। उसको आप ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के तक के आप पढ़ लीजिए। देखिए लेटेस्ट वाला सबसे ऊपर होगा, फिर धीरे 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 नीचे आता जाएगा। तो उसमें फिर आप जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगे, तो जो आपका ब्लैंक साइड है मेंस 365 का, उसमें ऐड कर लीजिएगा। तो क्या रहता है कि एक अच्छा रिच कंटेंट एट वन प्लेस यू विल गेट। ओके, सो दिस इज व्हाट आई डिड फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस। उसका काफी कुछ वर्ल्ड मैपिंग से भी है, तो आपने जो मैपिंग वगैरह की हुई होगी, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। इंटरनेशनल रिलेशंस इज डन। गवर्नेंस के लिए सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट की समरी ऑनलाइन आप टाइप करिए, सेकेंड एआरसी रिपोर्ट समरी पीडीएफ। जो अच्छी लगे उसको प्रिंट आउट लेके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें से निकाल के, अब देखिए आप रिपोर्ट पे से क्वेश्चन नहीं आएगा कि बताइए सेकेंड एआरसी रिपोर्ट ने क्या रिकमेंडेशन दिया था। दिस आर फॉर फॉर मेंस। आप मेंस में किसी क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि सेकेंड एआरसी रिपोर्ट हैज रेकमेंडेड दिस दिस, एंड देन यू कैन जस्ट गिव रिकमेंडेशंस अगर वे फॉरवर्ड पूछा है। ऐसे में भी कभी कभार अगर हुआ तो आप कोट कर सकते हो। वैसे आइडियली यू शुड नॉट बी टू स्कॉलरली इन योर एसेज। सो एक ये चीज हो गई। Let me come to my optional now. So my optional was sociology. And let's do one thing. Let me finish all that I have to tell in maybe next 5-7 minutes more. And उसके बाद में फिर I'll take up whatever questions you will be asking या जो अभी तक पूछे गए हैं. Next is sociology. Sociology is a wonderful optional. So sociology के लिए आपको क्या करना है? पहले मैं अपना मटेरियल बता देती हूँ. And absolutely, you don't need any coaching. Like one option that doesn't require any coaching. It's so generic. It's so much related to your daily life that you can make sense of almost everything. So, first thing would be कि आप नितिन सांगवान सर की जो एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी करके बुक है, उसको आप अपना बेस मटेरियल की तरह यूज करिए। देखिए बेस मटेरियल क्या होता है कि जो भी हमें ऐड करना है हम उसमें ऐड करेंगे, राइट? सो उसको बेस मटेरियल बना लीजिए, उसको एनरिच करिए आप तुषारांशु शर्मा सर के नोट्स, वो ऑनलाइन पड़े हुए हैं, पीडीएफ के फॉर्मेट में हैं। उसमें से आपको स्पेसिफिकली आप पढ़िएगा चैप्टर नंबर 2-3, पेपर 1 में चैप्टर 2, चैप्टर 3 थिंकर्स वाले पोर्शन में क्रिटिसिज्म वाला पोर्शन जरूर पढ़िएगा। एंड देन आपका जो सेकंड पेपर है उसके लास्ट 4 चैप्टर, मतलब ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इतना तो आपको एडिशनली पढ़ना है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप पूरे भी पढ़ सकते हैं, मतलब दोनों को इसमें से जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है आप उसमें मैच कर लीजिए। बहुत ज़्यादा सोशियोलॉजी में हरलम्बोज, रिट्ज़र, ये वो इन सब के पीछे मत भागिएगा, क्योंकि 250 वर्ड्स हैं, 10 मिनट हैं, या जो भी 150 वर्ड्स हैं, 7 मिनट हैं। उससे बियॉन्ड जाएँगे तो डेफिनेटली, एंड इवन आफ्टर सो मच ऑफ प्रैक्टिस, मेरा सोशियोलॉजी का एक क्वेश्चन 10 मार्क का छूट गया था, आता हुआ क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था कि मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इज चेंजिंग। मुझे मालूम था कि एलिमेंट्स ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज है, बट आई कुड नॉट राइट इट। सो उस चीज को ध्यान रखिएगा कि कंटेंट डज नॉट हैव एनी लिमिट, नंबर ऑफ वर्ड्स डू, स्पेस डू, एंड योर टाइम डज। सो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रख करके आप पढ़िएगा, कंटेंट उस तरह से डेवलप करिएगा। स्लीपी क्लासेस के वीडियोस जो ऑनलाइन पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, 4 इयर्स पुराने हैं, कंसेप्ट समझने के लिए बहुत अच्छे हैं, उनसे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू मेक एनी नोट्स आउट ऑफ देम। एंड बियॉन्ड दैट आई थिंक एक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक ले लीजिएगा, क्रॉनिकल आईएएस की सॉल्व्ड आती है, तो उसमें जो भी सॉल्यूशंस हैं उसको देख करके यू कैन जस्ट राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी नए पॉइंट्स मिलेंगे उससे निकाल करके आप ऐड कर लीजिएगा अपने बेस मटेरियल में। सो जो भी है एवरीथिंग शुड बी एडेड ऑन टू नितिन सांगवान, उसमें आप बीच में ब्लैंक पेजेस फिट कर करके कर लो, है ना? And beyond that, Triumph IS ka test series. It's a good test series. I just took one. Their feedback is very good, very detailed feedback. So this is one thing I did. For notes, I did not make notes for sociology on every topic. Only the topics that I thought कि book में अच्छे से organize नहीं है, उसके मैंने notes बनाए थे. All those notes I have scanned and shared on my Telegram channel for sociology, which is Sociology by Jagriti, something likewise. आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। Scanned मैंने बना लिए थे, जैसे कि comparison वाले notes हैं, Sociology and Science, Sociology and Common Sense, Sociology and Philosophy, Sociology and Psychology. इस तरीके के जो topics हैं उनमें
200 वर्ड्स के देखिए नोट्स बना लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो 150 वर्ड्स का आएगा। 200 वर्ड्स के नोट्स बनाएँगे तो रफली आपको हो जाएगा। थोड़ा-सा शॉर्ट में मैं आंसर राइटिंग के बारे में बता देती हूँ कि आपको सोशियोलॉजी में आंसर राइटिंग कैसे करनी होती है। If they ask you about a certain topic, they don't want your opinion, they want to ask what do sociologists think about it. तो thinkers के perspective से लिखिए। कोई टॉपिक पूछा जाए, उस पे आप डर्कहाइम का फंक्शनलिस्ट अप्रोच लिखिए, आप उसमें स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच लिखिए, मर्टन का लिखिए, पार्सन्स का लिखिए। यू कैन राइट अबाउट वेबेरियन, उसमें आइडियल टाइप वाला जो अप्रोच है, वर्स्टियन अप्रोच को आप लिख सकते हैं। यू कैन राइट अबाउट मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। So it's not your thought, it's just how the sociologists have thought. So just keep in mind, don't be too emotionally invested into any topic. Second thing is, don't try to become a sociologist yourself. Keep yourself very scholarly. एंड पेपर टू के जो आंसर्स हैं वो काफ़ी जेनरिक लगेंगे आपको, तो उसके लिए यू नीड टू कनेक्ट अ लॉट। यू नीड टू कनेक्ट विद पेपर वन। अगर सपोज पेपर टू में क्वेश्चन आता है से विमेन राइट्स पे, उसमें आप मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव लिखिए, उसमें आप स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव लिखिए, उसमें फिर आप ये फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव लिख सकते हैं, उसमें सिंबॉलिक इंटरैक्शन का पर्सपेक्टिव लिखिए कि जेंडर इज अ लर्न्ड एंटिटी, कि कैसे हमारे आसपास जो सिंबल्स हैं, जिसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट जेस्चर्स हैं, उनके थ्रू हमने किया हुआ है। सो दिस वे यू शुड आंसर। सोशियोलॉजी में थोड़ा सा स्कॉलरली होने की कोशिश करेंगे। उसमें क्या करना है, सपोज आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी भी टॉपिक को, एज इट इज जो डेफिनेशन सोशियोलॉजिस्ट ने दी है, जैसे डरखाम ने रिलीजन की डेफिनेशन दी हुई है, so you should quote the exact definition. Don't beat around the bush. You can just write, according to Durkheim, in his book, Elementary Forms of Religious Life in something likewise. कुछ वो बुक का नाम है। He defines religion as this. करना क्या है? जैसे मर्टन की जो एनोमी है, वो भी कोई उन्होंने बुक लिखी हुई थी, उस बुक को ज़रूर कोट करिए। देखिए इससे क्या मैसेज जाता है, कि यू हैव रेड अ लॉट। ऑल्दो मे बी यू हैव नॉट रेड सो मच, बट दिस विल गिव द इंप्रेशन दैट यू हैव रेड अ लॉट। तो मैंने क्या किया था, हर थिंकर की इंपॉर्टेंट बुक्स, उन बुक्स में दी हुई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, इसकी एक लिस्ट बना ली थी। वो लास्ट में आपको रिकॉल करने में बहुत ईज़ी रहेगा, एंड दिस विल हेल्प यू इन लॉन्ग रन एनीवेज़। So this is one advice I can give you for sociology. आंसर राइटिंग इन जनरल, आई विल से कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिख करके देख लीजिए। इफ यू राइट प्रीवियस ईयर टॉपिक क्वेश्चंस प्रॉपर्ली, यू विल बी एबल टू मेक होल्ड ऑफ थिंग्स की क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज यूपीएससी आस्किंग, एंड यूपीएससी डज रिपीट क्वेश्चंस। आप देखेंगे कि एक पैटर्न है, टॉपिक्स तो रिपीट होंगे ही, तो एटलीस्ट आपको वो चीज पता चल जाएगी। सो just go through them, write them, and join one test series. See this daily answer writing, हर दिन के बैठ करके किसी प्लेटफॉर्म पे लिखना, this might help you, but this will not help you learn how to write. That might help you to practice. To learn how to write, you have to pick up the pen, you have to pick up a paper, sit with the questions, write, and introspect a lot. कि भाई, if I'm write this way, how can you make sure कि this is the best version of answer? So whenever you write, rewrite it, read it again, and rewrite it to just prepare a final draft. एक rough draft से final draft की तरफ जो 2-3 iterations होती हैं, go through that will help you to come to the best version of yourself. And only you can do it. I mean, nobody else can make you write. See, they can give you feedback कि आप ये points लिख लीजिए, ये points लिख लीजिए। सो डू दिस एक्सरसाइज। एक क्वेश्चन उठाया, एक कोई टॉपिक पढ़ा, प्रीवियस का क्वेश्चन उठाया, एक बार लिखा, और इम्प्रूव करके कैसे लिख सकते हैं, दोबारा लिखा, और इम्प्रूव हो सकता हो तो तीसरे बार लिख लिया। इस तरीके से यू हैव टू लर्न टू राइट फर्स्ट, उसके बाद वन टेस्ट सीरीज वुड सफाइस। आईएस बाबा की टीएलपी सीरीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, वो ऑनलाइन अवेलेबल होती है, 5 क्वेश्चन आएंगे और उसके वो सिनॉप्सिस भी दे देते हैं, तो आप उसको लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिनॉप्सिस से कंपेयर कर लीजिए, जो पॉइंट्स ऐसा लगे कि उन्हें अच्छे इंक्लूड किए हुए हैं, उसको आप अपनी प्रिपरेशन में इन्वॉल्व कर लीजिए। दिस कैन बी वे टू स्टार्ट राइटिंग। Current affairs, I haven't covered, I guess, so I'll connect. I'll just put current affairs also. What you can do is that आप एक न्यूज़पेपर पकड़ लीजिए। Either you pick up Hindu or Indian Express. Nobody can tell you which newspaper is better. You have to decide for yourself. So 7 दिन हिंदू पढ़ लीजिए, 7 दिन इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए, एंड देन जो अच्छा लगे उसके साथ कंटिन्यू करिए। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द नोट्स वुड गेट जस्ट टू bulky, and once they get bulky you won't be able to revise them. So I used to read newspaper very thoroughly.
अगर टाइम कम है तो पेज नंबर फर्स्ट पेज पढ़ लीजिएगा, और जो 2 एडिटोरियल वाले जो पेजेस होते हैं वो पढ़ लीजिएगा, एंड इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमिक्स। अगर टाइम कम है तो इतना तो पढ़िए ही। एनालाइज ज़रूर करिए कि हाउ व्हाट डिड द न्यूज़पेपर से, ये कहना क्या चाहता है, ट्राई टू कनेक्ट। उसके बाद मैगज़ीन से आप रिवाइज़ कर लीजिएगा। विज़न आईएएस की मंथली मैगज़ीन यूज़ करती थी मैं। सो आई यूज्ड टू रीड इट मंथली, कि भई अगर अभी मैं पढ़ रही हूँ, एवरी डे 4 पेजेस, 90 टू 100 पेजेस की मैगज़ीन होती है। सो अगर आप रोज़ 4 पेज पढ़ेंगे तो 25 दिन में खत्म हो जाएगी, बाकी के 5 दिन में उसको रिवाइज़ करके छोड़ दीजिए। जब प्रीलिम्स आएगा तो पीटी 365 आएगी, हर सब्जेक्ट की पढ़नी है। जब मेंस होगा तो मेंस 365 आएगी, हर सब्जेक्ट की पढ़नी है। योजना कुरुक्षेत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने नहीं पढ़ी। मेंस के लिए आप एक काम कर सकते हैं, योजना कुरुक्षेत्र के जो एडिटोरियल वाला पेज होता है, 1 पेज होता है। तो ऐसे 12 पेज हो गए 1 महीने के, उनके प्रिंट आउट लेके आप उसमें से वोकैब्युलरी डेवलप कर सकते हैं, अच्छे-अच्छे कोट्स निकाल सकते हैं, दैट विल हेल्प यू। बाकी एसे के लिए आई गेस जब आप पूरा पढ़ चुके होंगे, तो ऐसे के लिए आई विल सजेस्ट कि आप अनुदीप दुरीशेट्टी सर का ब्लॉग है, ऑनलाइन अवेलेबल, और उसमें उन्होंने अपने मॉडल एसेज और कोटेशंस की लिस्ट वगैरह भी शेयर की हुई है। दैट यू कैन रीड, दैट विल बी अ गुड, आई मीन, आई रेड इट, आई थिंक जो मैं एसेज लिखती थी, आई कॉल देम अ बीटा वर्जन ऑफ व्हाट दुरीशेट्टी सर यूज्ड टू राइट। इट वाज डेफिनिटली अ level down, but he wrote wonderfully. So it's it's very it's a very well written blog, उसको पढ़िएगा, ऐसे आपको वहां से ज्यादा क्लैरिटी देगा। एथिक्स के लिए आप कोई भी एक बुक ले लीजिए, इनसाइट्स का मटेरियल, किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल ले लीजिए और सिलेक्ट के साथ बैठिए, उसको कोरिलेट करते हुए सारे कंसेप्ट्स की डेफिनेशन और कोर कंसेप्ट्स आप पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। उसके बाद में अपार्ट फ्रॉम दैट, केस स्टडीज के लिए लुकमान आईएएस की सॉल्व आती है एक बुकलेट, जिसमें उन्होंने सॉल्व सारी केस स्टडीज दी हुई हैं। राइट द केस स्टडी योरसेल्फ एंड देन जस्ट चेक कि whether it could be improved, whether it could not be improved. One more thing that I'll say particularly for answer writing is कि टॉपर्स की आंसर राइटिंग, सॉरी, टॉपर्स की जो कॉपीज होती हैं वो ऑनलाइन पड़ी हुई होती हैं। विजन ने अपनी उस पे डाली हुई है वेबसाइट पे, दूसरे कोचिंग्स भी अपने डालते हैं। आप एक बार ना पिछले 2 साल के कोई भी जो टॉपर्स हों, उनकी एक बार कॉपी खोल के देखिएगा कि विच टॉपर राइट्स क्लोजेस्ट टू योर यू, मतलब हर एक का एक राइटिंग स्टाइल है। जो भी टॉपर आपकी स्टाइल से क्लोजेस्ट लिखता हो, जैसे कि आई फाउंड प्रतिभा वर्मा मैम्स कॉपी रियली वेरी सिमिलर टू द वे आई राइट। उसको पढ़ के एक बार आप ये सीख सकते हैं कि हाउ यू कैन रियली improve your way of writing the answer. So this is one thing that you can do for answer writing. I think that just sums up my 2 cents that I had to give you. Now you can just start posting your questions. So I'll current affairs I've already shared. I think this will be available later in the form of a video, so you can just go through that. How to remember, हाँ, revision कैसे करना है, important. How to revise is read multiple times. There is no substitute to that. उसके बाद में you will have to revise it periodically. जितने बार आप रिवाइज करेंगे उतने बार आपको अपना कंटेंट रिवीजन का कम करना है। ऐसा नहीं है कि पहली बार पढ़ने में भी 8 घंटे लगे, बाद में रिवाइज करने में भी 8 घंटे लग रहे हैं। फर्स्ट रीडिंग इज 8 hours, देन सेकेंड रीडिंग शुड बी 6, 4, टू, लास्ट में आपके पास रिवाइज करते करते आप वो कंटेंट आइडेंटिफाई करिए जो कि आप भूल रहे हैं। जो आप ज़्यादा भूल रहे हैं उसको बार-बार रिवाइज़ करिए, हाइलाइट कर लीजिए। पहली बार में हाइलाइट नहीं करना है, पहली बार शांति से पढ़िए, समझिए। दूसरी बार में पेंसिल से हाइलाइट, तीसरी बार में पेन से हाइलाइट, और क्या हाइलाइट करेंगे? जो आप भूल रहे हैं। वही पेंसिल से जो हाइलाइट किया, दूसरी बार में आपने पेंसिल वाला पोर्शन पढ़ लिया। उसमें से कुछ चीज़ें याद रहेंगी, कुछ चीज़ें लगेंगी नहीं, ये मैं भूल सकती हूँ या भूल सकता हूँ। उसको पेन से हाइलाइट करिए। 4th टाइम जब आप पढ़ते हैं तो उसको प्रॉपर हाइलाइटर से हाइलाइट कर लीजिए। ठीक है? इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आप, और फिर रिवीजन ना धीरे-धीरे, जैसे पॉलिटी वही पहले हो सकता है आप 2.5-3 महीने में बुक कंप्लीट करें। दोबारा आप जब रिवाइज़ करें तो आपको हफ्ता भर लगे, फिर 2 दिन लगे रिवीजन में। एंड में आपको अपनी पूरी बुक को रिवाइज़ करना ही करना है इन अराउंड 2-3 आवर्स। तो सिर्फ़ जो हाइलाइटेड पोर्शन है, जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है, वो सब आप पढ़ पाएँगे, है ना? और इसके अलावा रिवीजन हो गया। रेस्ट आई थिंक बी वेरी मोटिवेटेड, रीड स्टैंडर्ड बुक्स, कोचिंग मटेरियल जहाँ पे गैप्स हैं, उसको फिल अप कर सकता है। आपके स्टैंडर्ड बुक्स आपके कॉन्सेप्ट्स को नहीं कर सकता है। एंड rest, you can just have a look at my Telegram channel once for the material that I have cited in this interaction.
And it's wonderful always to connect with the aspirants community, because it was not very it was not very long back when I was also on the other side and totally understand the uncertainties. So just I would conclude this entire thing by saying ki, this is just an exam. You have chosen this is your choice that you want to prepare. So complete the syllabus, practice a lot, and give your best. Baki, UPSC is not everything. I mean, there's more to us, there's more to life. Definitely, it's a good exam, it's a good service. So give your best, give your 100%, and not just here, wherever you go, give your 100%, and may the force be with you. फॉर सी सैट, कोई सी सैट का पूछ रहा है तो देखिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लीजिए और एक कोई भी सी सैट की मैनुअल उठा लीजिए। डेली 3-4 बार, डेली 3-4 सवाल करते रहिए अराउंड अ पीरियड ऑफ 3-4 मंथ्स। फिर वो आपके लिए सी सैट विल बिकम ईजी। इट्स वेरी वेरी बेसिक, 10th तक की मैथ्स पूछी जाती है। टाइम मैनेजमेंट इन अ डे, I'll say I devoted, because I was preparing full time, so I devoted around say 8 to 10 hours every day. सो 3-3 घंटे के स्लॉट बनाइए। 3 घंटे के इसलिए कि एग्जाम जब मेंस का होगा तो 3 घंटे का पेपर होगा। 3 hours यू शुड हैव द हैबिट ऑफ सिटिंग एट वन प्लेस एंड कॉन्सेंट्रेटिंग। डे वन पे नहीं आएगी, स्टार्ट विद स्मॉलर गोल्स ऑफ लाइक से 1 hour, 1.5 hour, and then you can just go ahead with it. So I'll conclude my lecture. I'm undergoing training presently, so I also have some other engagements, and I wish all the best to all of you. And there are a lot of questions. See, book list I have told you, and even if you have missed out or I have missed out on anything, I have shared it on my channel, on my Telegram channel. You'll be able to IR के लिए कौन से कोच मेंस 365 और विजन IS का यूज कर सकते हैं. It's a fair material. Now I think I'll call it I'll call the session over, and all the best to everyone. May the force be with you, and you all do wonderful in your lives. Bye bye. I had a great time connecting with all of you.